اللہ اسے 10 نیکی عطا کرتا ہے، اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے اور اس کے 10 درجات جنت کے اندر میں بلند فرماتا ہے۔ یہ تو صرف ایک درود کا اجر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کیونکہ ہم رجب کے مہینے میں ہیں، ہم رجب کے مہینے میں ہیں اور اگلا مہینہ شعبان کا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ شعبان میں جو ایک بار درود شریف پڑھے گا، ایک بار، اللہ اس کے ایک بار درود شریف پڑھنے سے ایک فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ اور وہ فرشتہ کتنا بڑا ہے، جب وہ اس کے ہاتھ کھولتا ہے، اس کے پر کھولتا ہے تو ایک پر پورا ایسٹ کور کر لے اور دوسرا پورا ویسٹ کور کر لے۔ اتنا بڑا فرشتہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک پر سے پورا ایسٹ اور دوسرے سے پورا ویسٹ کور ہو جائے، اتنا بڑا اللہ فرشتہ پیدا کرتا ہے۔ پھر اس فرشتے کو حکم دیتا ہے کہ تم اب میری رحمت کی دریا میں غوطہ لگاؤ۔ وہ فرشتہ اس رحمت کی دریا میں غوطہ لگاتا ہے۔ جب وہ باہر نکلتا ہے اللہ اسے حکم دیتا ہے کہ اب تم اپنے پروں کو جھڑو۔ جیسے وہ جھڑتا ہے جتنے بھی اس میں سے قطرے نکلتے ہیں اس ہر قطرے سے اللہ ایک اور فرشتہ پیدا کرتا ہے اور ان فرشتوں کی اللہ ڈیوٹی لگاتا ہے کہ تا قیامت جس نے یہ درود پڑھا ہے اس کی مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ اب اتنا بڑا فرشتہ جو ایک صرف اس کا ہاتھ ایسٹ کو کور کر رہا ہو اور دوسرا ویسٹ کو کر رہا ہو، اب اس کے پر سے کتنے فرشتے دوسرے یعنی کہ پیدا ہوں گے، لاکھوں کی تعداد میں، کروڑوں کی تعداد میں، اور اللہ ان کی ڈیوٹی کیا لگا رہا ہے کہ جس بندے نے پڑھا ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو، تاکہ ان کا کام ہی ہے اور کوئی کام نہیں ہے۔ اگر اللہ یہ شعبان میں کر سکتا ہے تو غفور الرحیم ذات ہے۔ اگر ہم آج پڑھیں گے تو اللہ کیوں نہیں ایسے کرے گا؟ اجر دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، اللہ پابند نہیں ہے کہ اللہ صرف شعبان میں اجر دے گا، اللہ پابند نہیں ہے کہ صرف رمضان میں ہی اجر دے گا۔ جب اللہ کا بندہ چاہے، جب بھی اللہ کا بندہ اس کی طرف رجوع ہوتا ہے، وہ سمجھ لے کہ اس کی معراج وہی دن ہوتی ہے، وہی رات ہوتا ہے۔ یہ مہینہ بڑا مبارک مہینہ ہے، یہ ہے رجب کا مہینہ۔ قرآن میں اللہ نے 4 مہینے بتائے ہیں جو مقدس ہے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، یہ 3 کٹھے ہیں اور رجب الگ ہے۔ یہ 4 مہینے بڑے مقدس ہیں اللہ کی نزدیک، اور ان 4 مہینوں میں اللہ یہاں تک ہے کہ اللہ نے لڑنا بھی حرام کر دیا، جنگ نہیں کرو۔ یہ رجب کا مہینہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب بھی آتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہتے ہیں نا کمر کو کس لیتے تھے، وہ کس لیتے تھے، اور کہ اب اگلا جو مہینہ آنے والا ہے شعبان اور اس کے بعد جو رمضان آنے والا ہے اس کی تیاری کے اندر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رجب کا مہینہ ہے نا وہ تو اللہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ میرا ہے، اور رمضان کا مہینہ میری امت کا مہینہ ہے۔ یعنی کہ اس مہینے کو نسبت جو ملی ہے وہ اللہ سے ملی ہے۔ رجب کے مہینے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو اللہ کا مہینہ ہے، اس میں اتنی عبادت کرنی چاہیے، اتنی عبادت کرنی چاہیے کہ جیسے کوئی میچ ہوتا ہے ہم دیکھتے ہیں تو اس سے پہلے پریکٹس ہوتی ہے، اس سے پہلے ایک کیمپ لگایا جاتا ہے، باقاعدہ تیاری کی جاتی ہے، پھر اس کے بعد پریکٹس کی جاتی ہے اور پھر میچ کھیلا جاتا ہے۔ تو میچ کھیلنے والا مہینہ جو ہے نا وہ تو ہے رمضان کا، اس میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی کہ اس دعا کے اوپر آمین ہے کہ جسے وہ مہینہ ملے اور اپنی مغفرت نہ فرما سکے، اللہ کو راضی کر کر اللہ کی عبادت کر کر وہ ہلاک ہو جائے۔ دعا جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں
اور اللہ کے نبی نے اس کے اوپر آمین کہہ کر مہر لگا دی، تو وہ مہینہ تو آنے والا ہے۔ اگر ہم اس طریقے سے ہی زندگی گزارتے جائیں گے جس طریقے سے باقی مہینے ہم نے گزارے ہیں، تو رمضان میں جا کر ہم سے عبادت نہیں ہو سکے گی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری شروع کر دیتے تھے، رجب سے ہی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رجب شریف آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا فی رمضان، یا اللہ ہمیں برکت عطا فرما رجب اور شعبان میں، اور ہمیں رمضان تک پہنچا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا رہتی تھی رجب کے مہینے میں، اللہ سے مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما تاکہ ہمیں رمضان مل سکے۔ ابھی ہم دیکھنے کے لیے جائیں تو رجب کا مہینہ ہے، کتنے ایسے لوگ تھے جو پچھلے سال رجب کے مہینے میں ہمارے ساتھ تھے، آج وہ نہیں ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہم اگلے سال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ اتنا بابرکت مہینہ ہے، اتنا بڑا مہینہ ہے، جس مہینے کے اندر میں اللہ نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا ہو، وہ کتنا بڑا مہینہ ہوگا کہ اللہ نے اپنا دیدار اس مہینے کے اندر میں عطا فرمایا۔ اس روئے زمین کے اوپر جتنے اللہ کے رسول اور نبی آئے، سب نے اللہ سے دعا مانگی، یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما، یا اللہ اپنا دیدار عطا فرما۔ اللہ نے کسی کی دعا قبول نہیں فرمائی، اللہ نے کسی کی دعا نہیں قبول فرمائی۔ اگر اللہ نے یہ شرف بخشا تو صرف اپنے حبیب کو بخشا، کہ حبیب نے مانگا نہیں، غم زدہ تھے، اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا کہ لے آؤ میرے حبیب کو، آج میں میرے حبیب سے ملاقات کروں گا۔ یہ تو وہ مہینہ ہے، یہ تو وہ اس مہینے کے اندر میں تو وہ رات ہے جس رات کو اللہ کے حبیب نے اللہ سے ملاقات کی تھی۔ انشاءاللہ آئندہ ہفتے ہم خصوصاً معراج کے اوپر انشاءاللہ ہم پروگرام کریں گے، اس طریقے سے اللہ نے اپنے حبیب کو حرم شریف سے، مکہ شریف سے بیت المقدس لے گئے، پھر وہاں سے پہلے آسمان، دوسرے آسمان، وہاں تک کہ سدرۃ المنتہا پار کر کر اللہ سے اپنے حبیب کی ملاقات ہوئی۔ انشاءاللہ تفصیلاً اس کے اوپر ہوگا، مگر یہ جو مہینہ ہے نا، یہ تو ہے عبادت کرنے کا، یہ مہینہ ہے رات کو جاگنے کا، یہ مہینہ ہے روزے رکھنے کا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ سب سے زیادہ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر رکھے ہو تو وہ ہے رجب کا مہینہ۔ اس مہینے سے زیادہ صرف رمضان کے اندر میں رکھے ہیں۔ رمضان کو چھوڑ کر باقی سال میں اگر سب سے زیادہ روزے اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھے ہو تو وہ ہے رجب کا مہینہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم نفلی روزے اس مہینے کے اندر میں رکھیں، بلکہ اگر کوئی نفلی روزہ رکھ رہا ہے اور اس کا اگر فرض روزہ رہ گیا ہے تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر میں اس کا جو فرض روزہ رہ گیا ہے اس کی قضا کر لے، کیونکہ جب تک فرض ادا نہیں ہوتا تب تک نفل کا اجر نہیں ملتا۔ تو بہتر یہ ہے کہ اگر کسی کا فرض رہ گیا ہے تو فرض کو اس مبارک مہینے کے اندر میں قضا کر لے، تو اس کو اللہ اس کی مہینے کی برکت سے جو نفلی روزہ رکھنے کا اس کا ارادہ تھا، اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا، اور اس کا جو قرض رہ گیا تھا، جو اس کا فرض باقی رہ گیا تھا، وہ ادا بھی ہو جائے گا۔ تو کوشش کر اس نیت سے روزہ رکھ لے کہ میرا جو قضا ہو گیا ہے میں اس کو ادا کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رجب ہے نا، رجب وہ اس طریقے سے ہے جس طریقے سے ہم کھیتی لگاتے ہیں، کھیتی کرتے ہیں نا، اس میں پہلے ہم بیج ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کا مہینہ ہے بیج ڈالنے والا،
बीज डालो। फिर फरमाते हैं कि शाबान का महीना जैसे है जैसे कि हम पानी डालते हैं, फिर क्या होता है कि फसल जब तैयार हो जाती है तो हम उसको काट देते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रजब का महीना है बीज डालने वाले की, शाबान का महीना है जैसे कि पानी डालते हैं, और रमजान का महीना है कि फसल काटो। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि रजब के महीने से हमें इबादत अल्लाह की इस तरीके से करनी है, इस तरीके से करनी कि अल्लाह हमसे खुश हो जाए। फिर जब शाबान आएगा तो हम जो पूरा साल हम अल्लाह से दूर रहे हैं, हम मस्जिदों से दूर रहे हैं, हम नमाजों से दूर रहे हैं, हम कुरान पाक से दूर रहे हैं, जब हम रजब में शुरू कर देंगे तो शाबान आएगा ना, तो हमारी प्रैक्टिस हो चुकी होगी, हम रजब से ज्यादा इबादत करेंगे शाबान के महीने में। और फिर उसके बाद जब रमजान आएगा तो हमारी एक ऐसी तरतीब और एक ऐसी आदत बन चुकी होगी कि रमजान के महीने में फिर हमें तकलीफ नहीं होगी इबादत करने में। फिर हम दिल से अल्लाह की ऐसी इबादत करेंगे कि अल्लाह फिर कहेगा कि जा मेरे बंदे, मैंने तेरी बख्शिश कर दी, मैंने तेरे सारे गुनाह माफ कर दिए, तू तो अब मेरी जन्नत का हकदार बन गया। अगर हम रजब से शुरू करेंगे, अगर हम रजब से शुरू करेंगे अल्लाह की इबादत करना, शाबान में यही इबादत करेंगे, शाबान के अंदर में हम रोजे रखेंगे, हम तिलावत कुरान करेंगे, हम नफली इबादत करेंगे, तो जब रमजान आएगा तो वहां पर तो फिर एक फर्ज 70 फर्ज का सवाब मिलेगा। नफल का अजर जो है, सुन्नत और नफल का, वो अल्लाह फर्ज के बराबर कर देता है। वहां पर तो फिर अल्लाह अपने खजाने के दरवाजे खोल देता है, अपनी रहमत के दरवाजे खोल देता है और कहता है लूट लो मेरे बंदे, जितना लूट सकते हो। अल्लाह फिर देने के लिए बैठा होता है, फिर हम में चाहे कि हम कितना ले सकते हैं, क्योंकि पूरा साल हम मस्जिद से दूर रहे होते हैं, हम कुरान से दूर होते हैं, हम नफली इबादत किया, हम तो फर्ज नमाजें भी नहीं पढ़े। तो जब रमजान शरीफ आता है तो फिर हमारी आदत वही होती है जैसे 11 महीने हमने गुजारे होते हैं गफलत में, वो भी महीना आता है और वैसे ही चला जाता है जैसे बाकी 11 महीने चले। तो इस दफा हम सब ने ये नियत करनी है कि इंशाअल्लाह इस महीने से ही हमें अल्लाह की इबादत करनी है। नमाजें तो हमें नहीं छोड़नी फर्ज इंशाअल्लाह। इसके अलावा हमें अब कुरान भी खोल लेना है। ये कुरान बंद रखने के लिए अल्लाह ने नहीं भेजा। अभी हमें खोलकर हम ज्यादा नहीं, डेली हम एक पेज तो पढ़ लें, एक रुकू पढ़ लें। हम ये तरतीब बनाएं, अभी से हम बनाएंगे। जब रमजान आएगी इंशाअल्लाह हम एक सिपारा डेली पढ़ लेंगे। ऐसे ऐसे लोग हैं कि दिन के 2-2, 3-3 खत्म करते हैं कुरान के। हमसे तो पूरी रमजान में एक खत्म नहीं हो सकता। और अल्लाह के ऐसे बंदे हैं कि सुबह एक खत्म करते हैं, रात को दूसरा खत्म करते हैं कुरान का। पूरा कुरान एक दिन में रमजान में 2 बार पढ़ लिया, पूरी रमजान में 7 कुरान खत्म कर लिए। हम एक कुरान पूरी रमजान में खत्म नहीं कर सकते। वजह क्या है मेरे भाइयों? सबसे बड़ी वजह यही है कि हम उस माहौल से दूर हैं, हम उस आदत से दूर हैं, क्योंकि हमारी आदत ही नहीं बनी हुई कुरान खोलने की। तो जब रमजान आता है, जब हमें खोलना चाहिए हम खोलते नहीं, जब हमें नफले पढ़नी चाहिए हमारी आदत नहीं होती, हम पढ़ते नहीं। तो हम अभी से कोशिश करना शुरू कर दे, अभी से हम नमाजें पढ़ना शुरू कर दे, अभी से हम नफले पढ़ना शुरू कर दे। जो हमारी नमाजें कज़ा रह गई है उसको अदा करना शुरू कर दे, कुरान पाक की तिलावत करना शुरू कर दे। तो इंशाअल्लाह जब रमजान शरीफ आएगा तो हमारे लिए आसान हो जाएगा उसके ऊपर अमल करना। ये जो 4 महीने मुकद्दस है, इसमें मुहर्रम को जो फजीलत है वो है आशूरा की वजह से। मुहर्रम को फजीलत है आशूरा की वजह से। जो 10 मुहर्रम का दिन बड़ा ही अफजल दिन है, बहुत बड़ा दिन है, जिसमें ना सिर्फ इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत का दिन है, बाकी बहुत से वाक़यात है जो इस दिन में गुजरे हैं। और अल्लाह ने दूसरी खुसूसियत दी है रजब के महीने में। इसमें इसकी जो खुसूसियत है ये है ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने, ज्यादा से ज्यादा रोजे रखने इस महीने में, ये इसकी खुसूसियत है। और इससे ये महीना पहचाना जाता है।
حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنے روزے رکھتے تھے اس مہینے کے اندر میں کہ ایک صحابی فرماتے تھے کہ ہمیں لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے، کبھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. پھر ایک وقت آتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے ہی نہیں تھے، تو ہمیں لگتا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی رجب میں روزہ نہیں رکھیں گے. وہ تو رحمت للعالمین تھے، وہ ہمیں دیکھ کر نہیں رکھتے تھے. اگر ایسا عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ کر لیتے تو ہمارے اوپر تو واجب ہو جاتا، ہم نہیں کر سکتے. رمضان کے روزے جو فرض ہیں وہ ہمیں رکھنے میں مشکل ہوتی ہے. اللہ اگر یہ بھی کر لیتے جس طریقے سے تراویح کے اندر میں ہے، پہلے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، دوسرے دن تشریف لے آئے، تیسرے دن جب دیکھا کہ مجمع اکٹھا ہو گیا ہے تو چوتھے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہی نہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تشریف نہیں لے آئے، ہم تو انتظار ہی فرماتے رہے. کہا مجھے ڈر لگتا تھا کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ میری وجہ سے تراویح تم کے اوپر فرض کر دے. وہ تو سنت عبادت تھی، نفل عبادت تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے ہمارے لیے سنت موقع ہو گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھتے ہوئے اس لیے تشریف نہیں لے کہ کہیں اللہ فرض نہ کر دے. یہ روزے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے چھوڑے کہیں ایسا نہ ہو کہ رجب کے روزے اتنے اللہ کو پسند آ جائے کہ اللہ کہ اے میرے حبیب آپ نے رکھے ہیں تو میں نے اس کو فرض کر دیے. اس ڈر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پورا رجب رکھتے تھے، ایک دو روزے چھوڑ دیتے تھے تاکہ رمضان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے، کیونکہ وہ پورا مہینہ رکھنا ہے. رجب کا مہینہ پورا مہینہ نہیں رکھتے تھے مگر کثرت سے رکھتے تھے، زیادہ تر روزے رکھتے تھے اور کبھی کبھی چھوڑ بھی دیتے تھے. اب اس میں امام احمد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ پورے سال کے روزے رکھتا ہے، پورے سال کے روزے رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ رجب کے بھی پورے مہینے کے روزے رکھے، پورے مہینے کے روزے رکھے. اور اگر پورے سال کے نہیں رکھتا تو پھر وہ کچھ رکھ لے، کچھ میں افطار کر لے، اللہ اسے اجر دے گا. کتنا اجر دے گا وہ اللہ کی ذات بے نیاز ہے، جتنا اللہ چاہے جیسے چاہے ویسے اپنے بندوں کو عطا کر دے گا. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر میں اگر جو ایسی عبادت کی کہ اللہ کو اس نے خوش کر دیا تو اللہ اس مہینے کے اندر میں جو اجر ہے اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کتنا ملٹی پلائی کر دیتا ہے اللہ کی ذات بہتر جانتی ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر میں اگر کوئی ایک روزہ رکھتا ہے اللہ اسے 1 سال کے روزے کا ثواب عطا کرے گا. سبحان اللہ، صرف سبحان ایک اللہ، روزہ رکھنا ہے. سبحان اللہ. فرماتے کون ہیں؟ حضرت انس رضی اللہ عنہ. اور یہ ساری باتیں وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں. ایک روزہ رکھے گا اللہ اسے 1 سال کے روزے کے برابر ثواب عطا کرے گا. فرماتے ہیں جو 7 روزے رکھ لے گا اللہ 7 جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دے گا. یہ رجب کی فضیلت ہے. جو 7 روزے رکھے گا اللہ 7 جہنم کے دروازے اس کے لیے بند کر دے گا. فرماتے ہیں کہ جو 8 روزے اس مہینے میں رکھے گا اللہ 8 جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور کیا چاہیے؟ سبحان اللہ. 8 روزے رکھنے سے اللہ 8 جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرماتے ہیں کہ جو اس مہینے کے اندر میں 15 روزے رکھے گا جنت سے ایک آواز آئے گی اور کہے گی کہ اے میرے بندے میں نے تیرے سارے پچھلے گناہ معاف کر دیے. سبحان اللہ، نہ سبحان صرف اللہ. معاف کیے ان گناہوں کو میں نے نیکیوں میں تبدیل کر دیا. آج سے تو نئی طریقے سے تیرا عمل نامہ شروع کر، نیکی کر لکھواتا جا، توبہ کر لکھواتا جا. یہ ندا آئی. تو اگر ہم بھی تھوڑی کوشش کر لیں میرے بھائیوں، ہم تھوڑی کوشش کر لیں. بہت سے ایسے ہمارے بھائی ہیں
जो रमजान में भी रोजा नहीं रखते, हालांकि अल्लाह ने सेहत भी दी होती है, अल्लाह ने सेहत भी दी होती है, नौजवान होते हैं, रख सकते हैं, मगर छोटे छोटे बहाने निकाल कर ऐसी बरकत वाला महीना है जिसमें अल्लाह अपने बंदों की मगफिरत फरमाता है और अल्लाह के नजदीक ये सबसे बड़ी इबादत है, उससे महरूम रह जाते हैं। तो हमें चाहिए हम देखें हमारे इर्द गिर्द सबसे बेहतरीन मोमिन मुसलमान वो है जो वो अपने लिए चाहता है वो दूसरों के लिए चाहिए। हम नहीं चाहते कि हम अल्लाह को खुश कर ले, सब यही चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अल्लाह हमें तौफीक अता फरमाए कि हम भी अल्लाह की इबादत करें, हम ये चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अल्लाह खुश हो जाए और हमें जहन्नम से हमें आज़ादी दे दे और जन्नत में हमें डाल दे, हम सब ये चाहते हैं। तो जब हम हमारे लिए चाहते हैं तो हम हमारे दूसरे भाई के लिए क्यों नहीं चाहते कि ये भी इसी तरीके से जन्नत का हकदार बन जाए और जन्नत में जाने वाला बन जाए। तो हमें ये भी देखना है कि भाई मैं तो नमाज पढ़ता हूँ, मेरे रूम के अंदर में मेरा भाई जो बराबर बिस्तर में सोता है मेरे साथ, वो तो नमाज नहीं पढ़ता। तो मैं अगर उठकर जाता हूँ तो मैं इसे कह दूं, थोड़ा प्यार मोहब्बत से कह दूं, थोड़ा समझा कर कह दूं, थोड़ी उसकी खिदमत कर कर कह दूं, थोड़ी उसकी मिन्नत कर कर कह दूं। ऐसा नहीं मुमकिन कि अगर हम किसी मुसलमान भाई को कहे, हमारा दोस्त भी हो, हर हमारी बात मानता भी हो और जहां हम कहें उसे हमारे साथ चले, और ऐसा मुमकिन है कि हम उसे कहे कि मेरे भाई चल मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में, और वो हमें इनकार कर दे, ये तो मुमकिन ही नहीं है। ये तो मुसलमान कह ही नहीं सकता कि भाई मैं नहीं चलता नमाज पढ़ने के लिए। ऐसा कोई मुसलमान नहीं होगा कि मना करे। ये तो हमारी गफलत है कि हमने सोचा ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कि हमारे बराबर में कौन है, हमारे साथ कौन है, मेरा दोस्त कौन है, मेरा उठना बैठना किसके साथ है, तो मैं उसको साथ लेकर जाऊं, मैं उसको भी दावत दूं। अगर हम अब से शुरू करेंगे, हम खुद भी अमल करें और दूसरों को अमल की दावत भी दे, और अल्लाह के नजदीक ये सबसे बेहतर अमल है। हजरत अली रजी अल्लाह ताला ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, मैं लोगों को दावत दूं यहाँ तक कि अगर मैं उस अमल के ऊपर अमल नहीं करता, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ अली तू उस अमल की भी दावत दे। अगर तू अमल नहीं करता मगर तू दावत दे, दावत देने से अल्लाह तौफीक पहले तुझे देगा, बाद में उस बंदे को देगा, वो भी अमल करने वाला बन जाएगा, तू भी अमल करने वाला बन जाएगा। तो हमें भी चाहिए मेरे भाइयों कि हम खुद भी नमाज पढ़ें, हम खुद भी अच्छे अमल करें, नेक अमल करें। रमजान की तैयारी अब से शुरू कर ले कि रमजान आने वाली है, रजब का महीना है, ज्यादा से ज्यादा इंशाल्लाह हम इसमें रोजे रखें और दूसरों को दावत भी दे कि मेरे भाइयों आप भी आओ, रमजान आने वाली है, अभी से शुरू कर दो। ऐसा ना हो कि रमजान आए, तरावी का वक्त हो और तुम आकर कहो कि मैं तो बहुत थक गया हूँ, अब मेरे से नमाज नहीं पढ़ी जाती। अगर अब से नमाज पढ़ना शुरू कर देगा तो रमजान में उसके लिए तरावी पढ़ना आसान हो जाएगी। तो इंशाअल्लाह हम सब ने ये नियत करनी है कि ना सिर्फ हम इंशाअल्लाह इस महीने के अंदर में ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की इबादत करेंगे। फर्ज नमाज तो हमें पढ़नी ही पढ़नी है, इसके अलावा जितना भी हो सके हम नफल नमाज नहीं छोड़ेंगे। इंशाअल्लाह ज्यादा से ज्यादा नफल पढ़ेंगे, क्योंकि नफल वो अमल है जो अल्लाह के करीब लाता है बंदे को। तो हमें नहीं छोड़ना, इन नमाजों को भी नहीं छोड़ना। इसके अलावा जितना भी हो सके कुरान हम बैठे हुए हैं, खोल कर बिस्मिल्लाह कर कर आज से इंशाअल्लाह हमें कुरान शुरू कर देना है, ताकि इंशाअल्लाह जब रमजान आएगी ना तो हम कोशिश कर कर, हो सकता है अल्लाह हमें भी तौफीक अता फरमा दे, अल्लाह हमें भी अपने उन मकबूल बंदों में शामिल कर ले कि कम से कम ज्यादा नहीं तो एक कुरान तो खत्म कर सके हम महीने का, डेली नहीं, रोज का नहीं, कम से कम पूरे महीने में हम एक कुरान तो खत्म कर सके। अल्लाह हमें इतनी तो तौफीक अता फरमा दे। तो हमें कोशिश करनी चाहिए। ये बड़ी रातें आएंगी, बड़े दिन हैं,
बड़े महीने हैं, ये हमें जितना हमसे मुमकिन हो उतना ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर कर हम अमल करें, क्योंकि 5 रातें ऐसी होती है, 5 रातें जिसमें अल्लाह हर दुआ को कबूल करता है, कोई भी बंदे की दुआ रद्द नहीं होती। पहली रात तो गुजर गई, वो है पहली रजब की रात। पहली रजब की रात जब चांद रात होती है, उस रात को जो भी दुआ की जाए अल्लाह रद्द नहीं करता, अल्लाह कबूल कर देता है। दूसरी है 15 शाबान की रात, वो रात आने वाली है अगले महीने इंशाअल्लाह। उस रात को नहीं छोड़ना, उस रात को नहीं छोड़ना इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर हमें हयाती दे तो इंशाअल्लाह हमें इबादत कर कर उस रात में अल्लाह को राजी करना है, हमें नहीं छोड़ना उस रात को। तीसरी रात है जुम्मे की, जो जुमेरात की रात होती है, जुम्मे की रात, उस रात को भी जो भी बंदा मांगे अल्लाह कबूल करता है, अल्लाह रद्द नहीं करता उस दुआ को। हम ऐसे ही, क्योंकि दूसरे दिन छुट्टी होती है, हम जाकर गुजार देते हैं, गप्पे मारकर गुजार देते हैं। हालांकि कितनी बड़ी रात है जिस रात में अल्लाह दुआ रद्द ही नहीं करता, अल्लाह हर दुआ कबूल कर लेता है और हमें पता ही नहीं। दूसरी दो रातें उसको भी हम ऐसे गुजार देते हैं जैसे हमें पता ही नहीं होता। वो हैं 2 ईदों की रातें, 2 ईदों की रातें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, रमजान की जब चांद ईद का नजर आ जाता है, शव्वाल का चांद, तो अल्लाह इतना खुश होता है, अल्लाह तो पहले आसमान पर आ जाता है और लुटाने के लिए अल्लाह बैठा होता है कि लो मेरे बंदे, मैं आज तुमसे इतना खुश हूँ, पूरा रमजान महीना तूने मेरी सुनी, नफ्स की नहीं मानी, जो मैंने हलाल किया था उसे तूने छोड़ दिया, जो मैंने मना फरमाया था कि नहीं खाना, तूने खाना नहीं खाया, मैंने मना कर दिया कि पानी नहीं पीना, तूने घूंट पानी नहीं पिया। हालांकि वुजू करते वक्त अगर हम उस पानी को अगर हलक से नीचे उतार ले तो वो तो हदीस शरीफ में आता है फरिश्तों को भी नहीं पता चलता, सिर्फ अल्लाह जानता है उसको। इसीलिए अल्लाह कहता है कि रोजा मेरे और मेरे बंदे के दरमियान में सिर्फ मुझे पता है। अब मेरा बंदा जब रोजा रखता है तो उसकी जो रजा है और उसका जो अजर है वो मैं खुद रब हूँ, इतनी बड़ी बात अल्लाह फरमाता है। तो वो बाबरकत महीना आने वाला है, इंशाअल्लाह हम उन रातों को भी अल्लाह की इबादत करें। हम ना भूल जाएं कि अब तो नजर आ गया चांद, रमजान खत्म हो गई, तो हम निकल जाते हैं शॉपिंग के ऊपर, हम निकल जाते हैं घूमने के लिए, मगर होते हैं कुछ अल्लाह के बंदे जो मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के सामने गिड़गिड़ा कर मांगते हैं, अल्लाह को राजी कर लेते हैं, अल्लाह उस रात को अता करता है। तो हम भी ना भूलें इन रातों को, जिन रातों में अल्लाह अता करता है। एक रात निकल गई, अगली रातें आने वाली है। दूसरी रातें हैं लैलतुल कद्र की है, जो आखिरी अशरे में आएगी इंशाल्लाह। उस रात को भी हमें ढूंढना है। और जितनी भी बाबरकत घड़ियां, आप समझ ले कि इस महीने से रमजान तक सारी जो घड़ियां हैं ना, ये बाबरकत है। ये छोटी बात नहीं है मेरे भाइयों, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें कि रजब का महीना अल्लाह का महीना है, ये अल्लाह का महीना है। हम अल्लाह की ऐसे इबादत करें जैसे अल्लाह का हक बनता है, हम अल्लाह को खुश कर ले और अल्लाह हमसे राजी हो जाए। ये सब कैसे होगा मेरे भाइयों? जब अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल में होगी तो हमें अमल से भी मोहब्बत होगी। अगर अल्लाह की मोहब्बत हमारे दिल के अंदर में नहीं होगी तो हम अमल नहीं कर सकेंगे। और ये मोहब्बत कैसे पैदा होगी? ये होगी अल्लाह के जिक्र से। अल्लाह का जिक्र 2 किस्म का है, एक जबान का जिक्र है, हम जबान से कहते हैं अल्लाह अल्लाह अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़े, इस्तगफार पढ़े। दूसरा है दिल से अल्लाह को याद करना। दिल से याद करना 70 गुना ज्यादा शान रखता है जबान के जिक्र से। अल्हम्दुलिल्लाह, जितने मेरे भाई यहाँ पर बैठे हुए हैं, जिक्र की इजाजत पहले से मिली हुई है। हम अब नियत कर लें, हम अब नियत कर कर इसके ऊपर डट जाए, नियत कर कर अल्लाह से मांग लें। हम
या अल्लाह अब मैं ये दाढ़ी को नहीं काटूंगा। जब हम कह देना नहीं काटूंगा तो नहीं काटूंगा। अगर किसी मेरे भाई को यकीन हो ना कि मैं अभी 10-15 साल और जीऊंगा और मरने से मैं 1 हफ्ता पहले मैं तौबा कर लूंगा, तो मेरे भाई वो फिर ना रखे, क्योंकि उसको यकीन है कि उसके पास मोहल्लत है, उसके पास टाइम है, और मौत से पहले अल्लाह अगर उसे बता देगा कि मेरे बंदे तू तौबा कर ले, अब 1 हफ्ते के बाद या 1 दिन के बाद तेरी मौत आनी है, तो फिर दूसरी बात है। मगर हमें किसी को नहीं पता मौत कब आनी है और किस हालत में आनी है। तो इसलिए मेरे भाइयों, आज से हम अल्लाह से तौबा कर कर, अल्लाह से तौबा कर कर हमें अमल वाली जिंदगी गुजारनी है। अमल वाली जिंदगी इंशाल्लाह गुजारनी है। ये जो जिक्र है ना, इसको नहीं छोड़ना। हर वक्त ख्याल रखे दिल के ऊपर, मेरा दिल कर रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। जितना वक्त मिले, जब भी मिले, जहां भी बैठे हुए हैं, सर को झुकाकर गुनाह की तौबा कर कर ख्याल दिल के ऊपर ले जाएं और सुने मेरा दिल कह रहा है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये अल्लाह का नूर हमारे दिलों के अंदर में दाखिल हो जाएगा इंशाअल्लाह। हमारा दिल अल्लाह के नाम से जिंदा हो जाएगा इंशाअल्लाह। फिर हमारे सारे अमल आसान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इसके अलावा नमाज नहीं छोड़नी। नमाज छोड़ना गुनाह कबीरा। जानी, बदकार, लानती, दयूस सबसे गुनाहगार बेनमाज। किसी भी हाल में नमाज पढ़नी है, नमाज नहीं छोड़नी। ये नियत कर ले इंशाअल्लाह मेरे भाई, हम नमाज नहीं छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। हम अल्लाह के बंदे हैं, हम अल्लाह के बंदे बनकर रहेंगे। हम नमाज नहीं छोड़ेंगे किसी भी हाल में होंगे। अगर मेरे भाई कज़ा हो गई ना, तौबा कर कर माफी मांगकर कज़ा कर लें, छोड़े नहीं। नमाज पढ़ें, वुजू करें, ये मिसवाक, ये सुन्नत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, इस तरीके से इसको पकड़कर 3 बार इसको दें, फिर कुल्ली कर ले, फिर 3 बार इसको दांत साफ करें, फिर कुल्ली कर कर, फिर साफ कर कर इसको रख दें। ये सुन्नत हो गई। अल्लाह के वली फरमाते हैं कि जो मोमिन 5 वक्त नमाज में वुजू करेगा और उसके साथ मिसवाक करेगा, मौत से पहले अल्लाह एक फरिश्ता भेजेगा, उसको कलमा तैयबा पढ़वाएगा, फिर उसकी मौत आएगी। एक सुन्नत के ऊपर अमल करने से। दीन इस्लाम में नंगे सर फिरने की इजाजत नहीं है। बेहतरीन से बेहतरीन टोपी खरीदिए, खूबसूरत हो, टोप सर को ढाप ले। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नंगे सर फिरने वालों को नापसंद फरमाया था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नापसंद फरमाए, क्या बनेगा हमारे मेरे भाइयों? हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनने हमारी शिफारत करनी है, अगर वो हमें नापसंद फरमा ले, मैं तो कसम खाकर कह सकता हूँ हम कहीं के नहीं रहेंगे मेरे भाई। बेहतर है कि अभी मान जाए, वक्त है, हम अल्लाह की मान ले, अल्लाह के रसूल की मान ले। इसमें ही हमारी कामयाबी है, इसमें ही हमारी भलाई है, वरना बड़ी मुश्किल होगी। सर को ढाप ले। ये जो हम बाल बनाए फिरते हैं ना, ये कभी ऐसे करते हैं और कभी ऐसे करते हैं, ये जब मर जाएंगे ना, ये बाल भी नहीं रहेंगे, ये निकल जाएगा सब कुछ। क्यों ना हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। हमें किससे शर्म आती है? टोपी रखने से हम किससे शर्माते हैं? हम यानी कि हम इजहार करने में कि हम मुसलमान हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं, तो हम इस चीज से शर्माते हैं लोगों को बताने के लिए कि हम मुसलमान हैं। मुसलमान की जाहिरी निशानी क्या है? यही है ना, ये पगड़ी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ये दाढ़ी मुबारक, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसकी हद ये 4 उंगली, ये छोटी हो गई ये काट दे, बड़ी हो गई ये काट दे। 4 उंगली से 1 उंगली छोटी नहीं कर सकते, गुनाह कबीरा है। क्या करना है हमें? क्या करना है? अमल करना है। अमल होता नहीं है हमारे से। होता इसलिए नहीं है कि हमारे दिल के अंदर में गंदगी भरी हुई। इस दिल को साफ करना पड़ेगा मेरे भाइयों, और ये दिल साफ होगा अल्लाह के जिक्र से। आसान तरीका है, मेरे मुर्शिद ने हमें समझा दिया है। इसको कर कर बेहतरीन से बेहतरीन तरीके से सर को ढापे, हो सके अमामा बांध ले,
नमाज के लिए बांध ले, फिर रख दे, नंगे सर नहीं घूमे। 90% बीमारियां है ना, 90% बीमारियां सर के बाद ऑब्जर्व करते हैं उसको और बॉडी के अंदर में जाता है और बंदा बीमार होता है। अगर इस सर को ढाप दिया जाए तो बंदा 90% बीमारियों से बच जाता है। एक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और इस दाढ़ी को भी नहीं काटना, ये अब नियत कर ले, ये ऐसी नियत पक्की कर ले कि इंशाल्लाह मैं नहीं काटूंगा, मैं इसको छोड़कर मेरे प्यारे हबीब को मैं राजी करूंगा, मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करूंगा, उनकी सुन्नतों के ऊपर अमल कर कर। तो इंशाल्लाह नियत ऐसी मजबूत करे, जिक्र करे, इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर में देखेंगे इंशाल्लाह कहना नहीं पड़ेगा, दिल खुद ब खुद अंदर से कहेगा कि नहीं, मैं अब इसको नहीं काट सकता, ये तो मेरे हबीब की सुन्नत है, जिस नबी ने मुझे और मेरी खानदान की शिफात करनी है, उनकी सुन्नतों के ऊपर मैं ना अमल करूं तो तुफ है मेरी जिंदगी के ऊपर। अगर हमने जिक्र कर लिया इंशाल्लाह ये तमाम अमल है ना वो आसान हो जाएंगे। ये बाबरकत महीने चल रहे हैं, खुद भी दुआ करें, दूसरों के लिए भी दुआ करें, हमारे मुर्शिद के लिए भी दुआ करें, आजिज के लिए भी दुआ करें कि हमें अल्लाह तौफीक अता फरमाए, अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें इस अमल करने के बाद इसके ऊपर साबित कदम होने की भी तौफीक अता फरमाए। ये ना हो कि हम रमजान में तो दाढ़ी छोड़ दें, जैसे ही चांद नजर आया, जैसे ही शैतान निकला, पहले दिन हम जाते हैं देखते हैं तो हजामों के पास लाइन लगी होती है, दाढ़ी काट रहे होते हैं। ऐसा अमल अल्लाह को पसंद नहीं। इस्तिकामत के साथ हो ना, वो अल्लाह को पसंद है कि जो अमल चाहे छोटा हो मगर इस्तिकामत के साथ हो, वो अल्लाह के नजदीक उस अमल से बेहतर है कि जो बहुत बड़ा हो मगर बंदा इस्तिकामत के साथ ना करे। तो अल्लाह हमें अमल की तौफीक अता फरमाए, हमें इसके ऊपर इस्तिकामत अता फरमाए, अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाए, कब्र में भी कामयाबी अता फरमाए और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।